مرحلے میں بھی ہمیں بہت ساری پیغام دے جاتی ہے اور بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں اور بہت سارے درس ہمیں ملتے ہیں کہ اس قربانی کے ذریعے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا جو درس ہے وہ درس یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے اور بھی جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، قرآن ہو، اذکار ہو، دعا ہو، صدقہ و خیرات ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، راستے سے پتھر ہٹانا ہو، پانی گر رہا ہو تو اس کو بند کرنا ہو، کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی پلانا ہو، راہ چلنے والا کوئی ہو، انجان ہو، بھٹک جائے تو اسے راہ بتائے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، یہ سب چیزوں میں ہم تقوی اختیار کریں، اخلاص پیدا کریں۔ نماز صرف اللہ کے لیے، نیکی میری اللہ کے لیے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں گنانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، رمضان میں نے تراویح پڑھی دکھانے کے لیے نہیں پڑھی، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہم نے دکھانے کے لیے نہیں کیے، آج ہم نے بکرے لائے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ دکھانا مقصد نہیں ہے ہمارا۔ ہمیں قربانی کے ذریعے سے جو پہلا پیغام ملتا ہے وہ پہلا پیغام یہی ہے، ہم متقی بنے، مخلص بنے، تقوی و للہیت والے بنے، اپنے اندر اللہ سے ڈر کا مادہ پیدا کریں۔ ذرا غور کیجئے آپ قربانی کے مرحلے پر، ہم بازار میں پیسے لے کر گئے، جیب میں ہمارے پیسے ہیں اور اس پیسے میں بھی ہمیں احساس ہے اور یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ درست ہونا چاہیے۔ جانور کے پاس پہنچے، منڈی میں پہنچنے کے بعد جانور کے ہم دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بہترین ہو، جانور کٹا ہوا نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، اور اس کے بعد ہم لے کر آتے ہیں اس جانور کو، جب جیسے ہی ہم رسی پکڑے اپنے دل کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لے۔ اس جانور کی رسی جیسے بیپاری ہم کو پکڑائے کہ یہ لیجئے فلانے میں یہ آپ کا بکرا ہے، آپ نے 20,000 میں اس کو خرید لیا ہے، اسی وقت ہمارے دل کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے، یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، اس قربانی سے صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اس قربانی کو دکھاوا مقصد نہیں ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ وہ قربانی کے جانور لائے پورے محلے میں گھماتے رہیں۔ اللہ کیا درکا، اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ سورہ حج اٹھائیے، آیت نمبر 37 پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت کو تمہارے جانوروں کے ہرگز خون اور گوشت نہیں پہنچتے، آپ کے جانور کے چمڑی یہی پر رہ جانے والی ہے، یہ گوشت یہی رہ جائیں گے، خون جو آپ بہائیں گے وہ مٹی کے اندر دب جائے گی یا پھر نالے میں بہ جائے گی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے ہاں پہنچنے والی ہے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یاد رکھو ہرگز اللہ کے ہاں تمہارے جانوروں کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا شور ہے، تمہارے دل کے اندر کیا امنگیں پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ فلانے میاں کا بکرا ہے، یہ دیکھیے مولوی صاحب کا بکرا جا رہا ہے۔ اگر دل کے اندر جہاں پر یہ خیال آیا، یاد رکھیے آپ کے اخلاص کے اندر درار پڑ چکی ہے، آپ کے اخلاص کے اندر خلوصیت نہیں ہے، آپ کے اخلاص کے اندر للہیت نہیں ہے، تقوی آپ پر، متقی آپ حقیقی طور پر نہیں ہے۔ آپ جیسے جانور لائے اسی دم کہیں یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، مجھے دکھانا مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی اور للہیت صرف جانور تک، قربانی تک، چھری چلائے تب تک، کب تک؟ زندگی کے ہر مرحلے میں جس وقت دل کے اندر خیال آئے، ہم اپنے، آج ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے اینڈرائیڈ فون کو جیسے اٹھائے اس وقت متقی بن جائے، اس وقت دل کے اندر تقوی پیدا کر لے۔ یہ صرف چھری چلانے تک، جانور لانے تک، یہیں تک تقوی نہیں ہے، یہیں تک اخلاص نہیں ہے، یہیں تک اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ چھری چلائیں تو بھی اللہ سے ڈرے، جب ہم گناہ کا خیال ہمارے دل کے اندر آئے تو بھی ہمیں ڈرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں متقی بننا ہے کہ یہ موبائل جیسے میں چالو کیا ہوں، فحش چیزیں آ رہی، اس کو بند کرو، اللہ سے ڈرو۔ جس ٹائم آپ کوئی گناہ کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے آنکھوں سے، اسی ٹائم دل کے اندر پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے جانور پر چھری چل رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ موبائل آپ چلا رہے بند کمرے کے اندر، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہارے دل کے اندر کیا وہ مجھے پہنچتا ہے۔ مجھے جانوروں سے مطلب نہیں، مجھے تمہارے موبائل سے مطلب نہیں ہے، مجھے تمہارے پیسوں کے نوٹ سے مطلب نہیں ہے۔ یہ نوٹ خرچ کرو، یہ کاغذ کے ٹکڑے خرچ کرو، یہ موبائل چلاؤ، لیکن تمہارے دل کے اندر امنگ کیا ہے، تمہارے اندر کس چیز کی لڑائی چل رہی ہے، وہ مجھے پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ قربانی جو ہے، اس حساب سے بھی ہمیں
अल्लाह से डरने का हुक्म देता है या फिर पैगाम देता है कि गरीबों की बेबसी देखकर अल्लाह से डरो। गरीबों की बेबसी देखो, आज क्या है गरीब, आज जिनके यहां काम धंधा नहीं हो रहा, कारोबार नहीं हो रहा है, आज उन गरीबों से पूछिए जिनके यहां कुर्बानी नहीं है, उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा। मेरे भाइयों, इनकी बेबसी को देखकर भी अपने दिल के अंदर तकवा पैदा करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे गुनाहों को छुपाया हुआ है, इस गुनाह के एवज में अल्लाह ने मुझसे माल नहीं छीना है, अल्लाह ने आज भी फरावानी दी है, इनकी मदद करो। इनकी बेबसी को देखो, इनको आप देखते रहिए, इनको देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जब कोई शुक्रिया अदा करता है तो मैं उसको और बढ़ाता हूं, अगर वो नाफरमानी को उतर आता तो मैं उसे सख्त अजाब दूंगा। तो मेरे भाइयों, आज ये दर्स हमें मिल रहा है कि आप अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, तकवा हमें तब पैदा करना है जब हम कारोबार करें। मेरे भाइयों, आज हमें बकरे का तो ख्याल है, हर शख्स बकरा बकरा कर रहा है, आए दिन 10 दिनों से हम सुन रहे हैं फलाने का बकरा, फलाने का बकरा, लेकिन साल भर से जिनको हम बकरा बना रहे हैं उनका क्या होगा? मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है। साड़ी आज हमारे यहाँ कारोबार होता है, किसी के यहाँ दुकान का कोई कारोबार है, अगर हम 100 रुपए भी किसी का मारते हैं, उस वक्त हमारा तकवा कहाँ गया? एक मामूली सी गलती की वजह से साड़ी में वहां गलती निकल जाए, मजदूरी कर जाए, तो उस वक्त हमारा तकवा कहाँ है? अगर ये एहसास हो जाए कि साड़ी चलने लायक है, मेरे भाइयों, काबे के रब की कसम, उस वक्त आप ये एहसास कर लीजिए कि इसके वजह से मैं अगर काट लूंगा तो उससे तकलीफ होगी, कहीं ऐसा है कि मैं उसे दे दूं तो अल्लाह मुझे बरकत देगा। उस वक्त भी आपको तकवा पैदा करना है। अगर आप ने किसी को मजदूरी को मार ली तो मेरे भाइयों आज दे दीजिए, अल्लाह का तकवा पैदा कर लीजिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों याद रखिए, अगर हमने किसी की मजदूरी मारी, अगर हमारा पैसा 1% भी अगर बेईमानी का है तो ऐसी कुर्बानी अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, अबू हुरैरा की हदीस है 1015 नंबर की मुस्लिम शरीफ में, अय्युहन नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, कि लोगों अल्लाह पाक है, अल्लाह अच्छा है, अल्लाह बहुत पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है। जानवर के ऐब ही मत देखो, अपनी जेब के अंदर पैसे भी देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मजदूरों की मजदूरी मारकर हमने ये रखे हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे या जो भी बना रहे, ये पैसा आ कहां से रहा है? पैसा कैसा हो, ये नबी के कहा जैसा होना चाहिए। दूसरा पैगाम ये है, और आखिरी पैगाम मैं आपके सामने सुना दूं कि कुर्बानी का एक पैगाम ये है कि कुर्बानी के जरिए हम ऐलान करते हैं कि हम शिर्क और कुफ्र से दूर होंगे। कुर्बानी के जरिए हम ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह के दरबार में हम ऐलान कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ाजुई के लिए जो कुर्बानी कर रहे हैं, हम उस वक्त ये ऐलान कर रहे हैं मैं शिर्क नहीं करूंगा, मैं कुफ्र नहीं करूंगा, क्योंकि जब हम छुरी चलाते हैं तो उस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी को शरीक नहीं ठहराते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। अल्लाह कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि नबी आप कह दीजिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना ये अल्लाह के लिए है। यानी हम बरात का इजहार कर रहे हैं, जैसे ये कुर्बानी हम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, वैसे ही तमाम इबादतों में किसी को हम शरीक न ठहराएं। कुरान पढ़े तो सिर्फ अपने लिए, ऐसा नहीं कि बाप दादा के लिए हम पढ़ ले, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करें, हम किसी पीर और मुरीद के लिए हम न पढ़ें, रोजे भी रखे सिर्फ अपने लिए। जो भी जुमला इबादतें कर रहे हैं, 1 रुपए उठा रहे हैं हम उसे खर्च करने के लिए, तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ये मैं 1 रुपए अपने तरफ से खर्च कर रहा हूं, इसमें मैं किसी को शरीक नहीं ठहराता हूं, मैं डरता तो तुझसे हूं, मैं तुझे सब कुछ मानता हूं, ये पैसा इसलिए मैं तेरे लिए खर्च कर रहा हूं। आप अपने बाप के लिए खर्च करें, अपने वालिदैन जो मरहूम वालिदैन हैं उनके लिए भी खर्च करें, तो दिल के अंदर यही होना चाहिए, अल्लाह मैं सिर्फ तेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि तू ही हमसे राजी हो सकता है। हकीकी तौर पर दुनिया के जितने लोग हैं ये तो रूठते रहते हैं और इनको मनाते रहते हैं हम लोग। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुनते जाइए, अबू उमामा अल बाहिरी रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं, सुनन नसई में 3140 नंबर के, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमल इल्ला मा काना लहू खालिसन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस हो, जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। यानी मेरे भाइयों, ये कुर्बानी अपने आप में सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ जानवरों की कुर्बानी की जाए, ये कुर्बानी अपने आप में ये है कि पैगाम है कि इबादत में खुलूस होना चाहिए, और चाहे वो इबादत कुर्बानी की हो, चाहे नमाज की हो, हज हो, या फिर जितनी भी इबादतें हो, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए और किसी चीज के लिए नहीं। और ये कुर्बानी ये दर्श देता है कि मेरे भाइयों, सिर्फ खून बहाना, ये जानवर ज़बह करना ही कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये माल जो हम लगा रहे हैं ये भी कुर्बानी है।
जो हम वक्त दे रहे हैं जानवर ढूंढने में, ये भी एक तरीके की कुर्बानी है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजाजुई तलाश कीजिए। और इसी तरीके से जो हम जानवर लाकर काटेंगे, जो मेहनत करेंगे, ये भी एक तरीके की कुर्बानी है। आप ईदगाह के अंदर पहले से आए, आप बिछौना बिछाएं, रुके रहें, अब क्यों उठा कर जाएंगे, ये भी कुर्बानी है। रास्ते से आप पत्थर को हटाएं, ये भी कुर्बानी है। दिल के अंदर गुनाह का जैसे शक पैदा हो, अपने दिल को मना ले, ये भी कुर्बानी है। नफ्स की कुर्बानी यही होती है मेरे भाइयों, अपने नफ्स को मना लेना कि गुनाह नहीं करना है। गुस्सा आए अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर लेना, ये भी कुर्बानी है मेरे भाइयों। दीनी काम के लिए आप वक्त निकालें, ये भी कुर्बानी है। आप अपने बच्चों को दीन के लिए आजाद कर दे कि दीनी कोई काम होगा बेटा तुमको वहां हाजिर होना है, पढ़ने के लिए बेटा जाना है, ये भी कुर्बानी है। कुर्बानी सिर्फ यही नहीं है मेरे भाइयों, देश की सेवा करना भी कुर्बानी है, देश के लिए कोई काम करना भी कुर्बानी है। अगर आप यहां खड़े होकर प्रशासन के साथ खड़े हो जाए कि साहब चलिए आप भी करिए हम भी काम करते हैं, ये भी कुर्बानी है मेरे भाइयों। सिर्फ कुर्बानी जानवर का नाम नहीं है, कुर्बानी बहुत वसी माना है, इसका बहुत वसी पहलू है मेरे भाइयों। हर पहलू पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी का एक एक कदम हमारे, जब हम गुनाह नहीं करें वो कुर्बानी है मेरे भाइयों। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, तमाम लोग जो यहाँ पर जमा हुए नबी की सुन्नत की अदायगी की है, अल्लाह आलमीन इस सुन्नत की अदायगी के एवज हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह आलमीन जो हम कुर्बानी तेरे दरबार में पेश करने वाले हैं, अल्लाह आलमीन उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह आलमीन जितने लोग भी कुर्बानी कर रहे हैं, तमाम की कुर्बानी चाहे अदना हो या हाई लेवल का हो, उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह आलमीन जो गरीब बेबस लोग हैं, कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह आलमीन अगर वो अपने नाखून और बाल इसी तरीके से मूछ वगैरह कतर रहे थे, अल्लाह आलमीन उसे भी कुर्बानी का सवाब दे। अल्लाह आलमीन जितने भी बेबस लोग हैं, हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि कुर्बानी के जरिया उसके गोश्त से भी ख्याल रखे, पैसे के जरिया भी ख्याल रखे, दवा की जरूरत हो तो अल्लाह आलमीन हमें तौफीक दे कि उनके दवा दरबार में भी हम लोग उनकी मदद कर सके। अल्लाह आलमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान का माहौल पैदा कर दे। अल्लाह आलमीन हिंदुस्तान जैसे हसीन और जमील देश को अपने रहमत से तू इसको गुलजार बना दे। अल्लाह आलमीन बुरी नजर जो इस पे पड़ रही है, हमारे देश पर किसी भी तरीके की कोई भी बुरी नजर पड़ रही है, अल्लाह आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं, आज मुकद्दस दिन है, तेरा ही वादा है कि ये 10 दिन ऐसे हैं कि इसमें जो भी इबादत की जाए मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं इस महबूब दिन में कि अल्लाह आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे दिन की हिफाजत फरमा, हमारे मुस्लिम नौजवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन जो बीमारों में शिफाई कामिला आजिल अता फरमा, जो मकरूज उनके कर्ज की अदायगी को हल्का कर दे। अल्लाह आलमीन जो भी हमारे माशरे के अंदर लड़के और लड़कियां बिन ब्याहे हैं, उनके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह आलमीन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह आलमीन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह आलमीन फिलिस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह आलमीन पूरी दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह आलमीन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, माली हालत से जूझ रहे हैं, अल्लाह आलमीन अगर तेरी रजा है इसमें तो उन्हें भी अल्लाह आलमीन आसानी में बदल दे। अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, और हमारा खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि ताआला अकबर।